بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جناب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارا آپ سے رابطہ برقرار رہے۔ صورتحال یہ ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جمعہ کا دن بھی گزر گیا اور DGISI کی اپائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن نہ ہو سکا۔ اب یہ نوٹیفیکیشن کب ہوگا، کیوں ہوگا اور تاخیر کی وجہ کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور کچھ اور خبریں ہیں، اور خاص طور پہ تحریک لبیک پاکستان، ان کا معاملہ بھی عروج پہ ہے جی، اور سارا دن جھڑپیں ہوتی رہیں اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، امن و امان کی صورتحال مخدوش رہی، اس کی بھی ڈیٹیلز بتائیں گے۔ پھر یہ کہ سب سے امپورٹنٹ، وزیر اعظم عمران خان دورہ سعودی عرب کے لیے کل صبح روانہ ہو جائیں گے، یعنی کہ 23 اکتوبر کو روانہ ہوں گے اور یہ 25 اکتوبر تک کا معاملہ ہے۔ 3 دن باہر رہیں گے اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ 25 اکتوبر کو بھی لیٹ نائٹ واپس آئیں اور وہ مدینہ منورہ، سب سے پہلے مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوں گے اور وہاں پہ سلام پیش کریں گے جی، اور اس کے بعد پھر کانفرنس اس میں شرکت کریں گے۔ محمد بن سلمان اور کنگ سلمان سے ان کی ملاقاتیں ہیں، اور پھر آخر میں وہ عمرے کی ادائیگی کریں گے اور اس کے بعد وطن واپس آئیں گے۔ لیکن اس میں خاص طور پہ ان کے وفد میں کون کون ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس دورہ سعودی عرب کے دوران کیا امور انجام پائے جانے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ وزٹ ہے کیونکہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان معاملات کافی ہو گئے تھے گڑبڑ، سرد مہری کا شکار ہو گئے تھے، اور کچھ معاملات کی وجہ سے پھر کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، لیکن اب ان غلط فہمیوں کو دور کر لیا گیا ہے اور کافی طویل عرصے کے بعد یہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب ہے۔ ان کو دورے کی دعوت دی ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے۔ اس دورے میں جی 3 روزہ سرکاری دورہ، اس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ان کے ساتھ ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے علاوہ وزیر خزانہ شوکت ترین بھی ان کے ہمراہ ہوں گے، اور شوکت ترین صاحب امریکہ میں موجود تھے۔ امریکہ میں وہ IMF سے مذاکرات کر رہے تھے۔ IMF سے مذاکرات ابھی جاری ہیں اور کچھ طول پکڑتے جا رہے ہیں، کچھ معاملات میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی، اور اس لیے شوکت ترین صاحب کافی دنوں سے وہاں پہ رکے ہوئے تھے، لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ جی وہ مذاکرات کو ادھورا چھوڑ کے جوائن کریں گے وزیر اعظم عمران خان کو دورہ سعودی عرب کے لیے۔ اس دورہ سعودی عرب میں ایک اور اہم شخصیت وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہوں گی، اور وہ ہیں DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ آج وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ سعودی عرب جائیں گے، کیونکہ کچھ معاملات سعودی عرب کے ساتھ جو بات چیت چل رہی تھی اس میں جنرل فیض حمید کا اہم کردار تھا، کچھ انہوں نے وزٹ بھی کیے، اور خاص طور پہ جو اکانومی کی صورتحال ہے اس پہ بات چیت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بطور DGISI سربراہ انہوں نے کیے تھے۔ ڈیفر پیمنٹ پہ پاکستان کو سعودی عرب نے کچھ فیول دینا ہے اور سالانہ بنیادوں پہ، اس کو بھی DGISI جنرل فیض حمید نے ہی فائنل کیا تھا۔ اس لیے جنرل فیض حمید وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ سعودی عرب میں ہوں گے اب تک کی اطلاعات کے مطابق، اور اسی لیے اسی بنیاد پہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ نوٹیفیکیشن کا معاملہ بھی اسی لیے لٹک گیا کہ اگر وزیر اعظم عمران خان دورہ سعودی عرب سے پہلے اگر ان کا نوٹیفیکیشن کرتے تو ایسی صورت میں ان کا سعودی عرب میں جانا اور پھر وہاں پہ مذاکرات میں حصہ لینا وہ تھوڑا سا اچھا محسوس نہیں ہونا تھا۔ اس لیے وزیر اعظم عمران خان نے ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے نئے DGISI کے اپائنٹمنٹ کا وہ مؤخر کیا ہے، اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ جب واپس آئیں گے تو عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ کب کرنا ہے۔ تو اس میں دونوں طرح کی اطلاعات چل رہی ہیں۔ یہ بتا دوں کہ پروسیس مکمل کر لیا گیا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان سے
मुलाकातें भी हो चुकी हैं, आप उनको मुलाकातें कहें, इंटरव्यू कहें। तकरीबन तीनों जो पैनल में 3 लेफ्टिनेंट जनरल थे, 3 स्टार जर्नल थे, उन तीनों के साथ इंटरव्यूज़ हो चुके, गुफ्तगू हो चुकी, और तकरीबन 2 जो हैं उनके साथ 2 जर्नलों के साथ कोई 30-30 मिनट के सेशन हुए, और जबकि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के साथ थोड़ा सा तवील सेशन हुआ था। जो इतलात हैं जिनकी सरकारी ज़राए पर तस्दीक कोई भी नहीं कर रहा, बुध के रोज़ मुलाकात हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम की, और जुमेरात को बाकी 2 3 स्टार जर्नलों की। इसी दौरान लेफ्टिनेंट जनरल नदीम की आर्मी चीफ से भी मुलाकात हो चुकी है, जो इस वक्त कोर कमांडर कराची हैं। ये चेंज ऑफ कमांड का जो मामला है ये प्रोसेस चल रहा है। नेक्स्ट वीक 24 अक्टूबर जो है उसमें कुछ और चेंज ऑफ कमांड होगा जी, और नए ज़िम्मेदारियां संभाली जाएंगी। जबकि DGISI के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब तक मुकम्मल कर चुके हैं, और अब इस फ़ाइल पे वो जब चाहें फ़ैसला कर सकते हैं, और वो नेक्स्ट वीक भी कर सकते हैं, और उससे अगले हफ्ते में भी कर सकते हैं। अगर आप कहें कि कोई सिचुएशन ऐसी है जैसे फ़ुटबॉल का मैच खेलते हैं, तो मुकर्ररा वक्त में अगर कोई भी गोल ना हो रहा हो तो 15-15 मिनट इजाफी मिल जाते हैं, तो उसमें फिर तगोदौ की जाती है। इसी तरीके से अगर आप क्रिकेट की मिसाल लें तो उसमें भी अगर मैच बराबर हो जाए, मुकर्रर ओवर्स में बात ना बने, तो फिर सुपर ओवर दिया जाता है। तो इसी तरह की सूरत हाल है। लेकिन कॉन्स्पिरेसीज़ पे ध्यान ना करिए, कॉन्स्पिरेसीज़ बहुत हैं, बहुत सारे साजिशी थ्योरीज़ फिर रही हैं, लेकिन इसमें कोई अब तक मेरे पास जो इतलात हैं सुकून है, और पीसफुली ये सब कुछ हो जाएगा, और किसी किस्म की शायद बदमज़गी ना हो। और ये सिर्फ सऊदी अरब का मामला था इसलिए, तो वैसे भी कुछ इम्पोर्टेंट, क्योंकि अफ़गानिस्तान का मामला भी अपनी जगह पे, फैटफ का मामला, उसके बाद था IMF से मुज़ाकरा, ये इसमें इनपुट जो हैं वो दिए जाते हैं। खैर, अब चलते हैं जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। सारा दिन जो है वो आँख मचौली का सिलसिला जारी रहा। जुमे के बाद, नमाज जुमा के बाद ऐलान किया था TLP ने कि वो मुल्क भर में मुज़ाहरे करेंगे, और पुरअमन मुज़ाहरे करेंगे, और रवाना होंगे इस्लामाबाद की तरफ। लेकिन इस बार हमने देखा है कि रियासती मशीनरी, हुकूमती मशीनरी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है, और इस पे किसी किस्म का मौका नहीं, कोई चांस नहीं ले रही, और किसी भी सूरत में इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने से हर सूरत में रोक रही है, और ताकत का इस्तेमाल भी हुआ, और कानून हरकत में आया हुआ है। और पूरे सारा दिन जो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से इतलात आई हैं उसमें सूरत हाल अच्छी नहीं है, कशीदा सूरत हाल है। दोनों तरफ से कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस और दीगर, और साथ ही झड़पें भी हुई हैं, आपस में क्लैश भी हुआ है, तो जिसकी वजह से सूरत हाल को हम अच्छा नहीं कह सकते, अफसोसनाक सूरत हाल है, और ये ख़तरनाक भी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि हम पहले भी कहते रहे हैं कि ताकत का इस्तेमाल ना हो दोनों की तरफ से तो बेहतर है। लेकिन सोशल मीडिया पे एक और चीज़ भी है, इसको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी जो बैरूनी एलिमेंट है वो भी इसमें काफ़ी तेल छिड़क रहा है, ताकि पाकिस्तान में, मादरे वतन में हालात ख़राब हों। तो मैं यही कहूँगा कि ख़बरें अपनी जगह, सोशल मीडिया की ख़बरें भी अपनी जगह, लेकिन बहरहाल एहतियात करनी चाहिए। सूरत हाल माजी की निस्बत ये है, माजी में आने दिया जाता था, लेकिन इस बार गवर्नमेंट का जो फ़ैसला है वो ये है कि हम ऐसा कोई इज्तिमा होने ही नहीं देंगे। और मोटरवे इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे बंद है। GT रोड में भी मुख्तलिफ़ शहरें, जो शहर बड़े हैं, गुजरांवाला है, वहाँ पे गुजरात है, वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ मौजूद है, और GT रोड भी क्लियर नहीं है। बाकी मोटरवे जो इंटरचेंजेस हैं वहाँ पे भी नफरी तैनात है, तो वहाँ पे भी ज़्यादा था कि शायद उधर से एंटर होंगे, तो उनको भी किया हुआ है ब्लॉक। तो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बंद, और दूसरा GT रोड पे भी, जबकि पिंडी में सड़कें ब्लॉक की गई हैं, लाहौर में रोड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं।
इस्लाम आबाद आने जाने वाले रास्ते पे कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। नेट सर्विस मुअत्तल है, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, ये सारी की सारी मेट्रो बसेस की सर्विस मुअत्तल रही। तो ये चीज़ें चलती रहीं और कुछ अफसोसनाक मनाज़र भी देखने को मिले। तो अगेन हम कहेंगे कि ये अच्छा नहीं है, ना ही पाकिस्तान के लिए और ना ही अदरवाइज़। और दूसरी जानिब PDM का भी जलसा रहा। PDM ने भी कराची, लाहौर, पेशावर और दीगर शहरों में नमाज जुमा के बाद मुज़ाहरों का ऐलान किए रखा और उनको ख़ास इतनी पजीराई नहीं मिली और ज़्यादा हावी जो रहा वो तहरीक लब्बैक का है। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इसके क्योंकि हमें आलमी तौर पे भी मॉनिटर किया जा रहा है और हमारे जो नाहिंजार दुश्मन हैं वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है? बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बेहतर हुई है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर तारीख़ की पहली मरतबा 20 अरब डॉलर से तजावुज़ किए हैं और उसमें 20.15 तक पहुँचे हैं। और अब चूँकि कुछ पेमेंट्स हुई हैं, अदायगियाँ हुई हैं, उसकी वजह से ये ज़ख़ायर जो हैं वो 19.1 अरब डॉलर के मुकाबले में 1.6 अरब डॉलर्स में कमी हुई है। 18 अक्टूबर को 19.1 तक थे। इसी तरीके से जी ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 24 अरब डॉलर हैं स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों के पास, जिनमें कमर्शियल बैंकों के पास ज़ख़ायर 6.8 अरब डॉलर हैं। ये सारे फैक्ट्स बताने का मकसद ये है कि सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बेहतरी भी है, लेकिन चूँकि कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसके बाद हालात ख़राबी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। IMF से मैंने बताया कि मुज़ाकरात का टाइम फ्रेम फिर गड़बड़ है, वो तात्तुल का शिकार हैं और इस बारे में कोई भी नहीं बता सकता कि कितने अरसे में ये कामयाब होंगे। IMF ने भी हाथ ज़रा खींच लिया है थोड़ा सा और ये सब कुछ आपको दबाया जा रहा है और उसमें दबाने से मुराद यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी आपको पता है सूरत हाल अच्छी नहीं है। माजी में बेशुमार कर्ज़े लिए गए और उन कर्ज़ों को उतारा जा रहा है और 1 अरब डॉलर अभी इसी महीने उतारे गए हैं, वापस किए गए हैं और मज़ीद अभी हमने ख़ास तौर पे अगले 1 साल के अंदर काफ़ी रकम कोई 10-12 अरब डॉलर है जो कि हमने वापस करनी है और ये सारे पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे और किस तरीके से होंगे, ये एक वबाल जान मामला बना हुआ है। दूसरी जानिब इधर हमारे यहाँ ये सिचुएशन जा रही है और दूसरी जानिब डॉलर का रेट बहुत बढ़ चुका है और डॉलर के बारे में इतलात ये हैं कि अब इसको स्टोर किया जा रहा है, ज़ख़ीरा किया जा रहा है। कौन से अनासर कर रहे हैं ये अभी तक सिवाय 1-2 के कोई नहीं पकड़े जा चुके। FATF की ग्रे लिस्ट में हमें मज़ीद रख दिया गया है। FATF की ग्रे लिस्ट में मुस्तकिल तौर पे हम हैं और अब अप्रैल तक उन्होंने कहा है जी इसको मौखर अप्रैल तक हम दोबारा सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और पाकिस्तान बदस्तूर निगरानी में रहेगा FATF की और 34 में से 30 नुकात में वो कहते हैं बेहतरी दिखाई गई। ये मैं अगेन कहूँगा कि इसमें भी पाकिस्तान को अब इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और इंतकाम सियासी है और इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने जितनी लेजिस्लेशन की है और पाकिस्तान ने जितने इक़दाम किए हैं FATF से हट के भी अपने माली मामलात को ठीक किया, बैंकिंग सेक्टर को ठीक किया, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जितने इक़दाम किए और जितने लोग पकड़े गए वो सब के सब अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये अब इसको ग्रे लिस्ट से ना निकालना खालिसतन एक सियासी फ़ैसला है और शायद हमें एब्सोल्युटली नॉट की सज़ा भी दी जा रही है। तो ये मामलात चल रहे हैं। महंगाई बदस्तूर ऊपर जा रही है और इस पे भी एक बात बता दूं कि अगेन वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि गलत ख़बर दी गई थी पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान का महंगाई में 4था नंबर है और इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ज़ाहिर की गई थी। अब उसमें तब्दीली कर दी गई है जी।
اب وہ اکانومسٹ کی رپورٹ نہیں ہے، کسی اور رسالے کی رپورٹ بتائی جا رہی ہے، اور اس میں 42 ملکوں میں مہنگائی کی فہرست میں پاکستان کا چوتھا نمبر ظاہر جو کیا گیا تھا، اب کہتے ہیں چوتھا نہیں 30واں نمبر ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں تو وہ رسالہ ہی نظر نہیں آیا، دی اکانومسٹ جو ہم پڑھتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں، اس میں کسی ایسے ملک ایسا کوئی ہمیں اعداد و شمار نظر نہیں آئے جس میں پاکستان کا چوتھا نمبر قرار دیا ہو۔ اس لیے یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان دورہ سعودی عرب سے واپسی پہ آٹا، چینی، دال اور گھی پر بڑا ریلیف دینے والے ہیں، اور اب اتنی خبریں دی جا چکی ہیں کہ جب تک یہ ریلیف مل نہ جائے اس وقت تک ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو یہ تھیں اب تک کی خبریں جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔